کہ ایسے کاموں کا کرنا روزے کی حالت میں حرام ہے، اور حرام ہی نہیں بلکہ روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ تو ممنوع افعال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جن سے روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا، اور ایک قسم وہ ہے جس سے ہمارا روزہ باطل تو نہیں ہوگا، البتہ روزے کی جو نیکی ہے وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کون سے کام ہیں جن سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو ایک نمبر میں ہے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی لینا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 کے اندر پہلے یہ فرمایا کہ تم لوگ کھاتے پیتے رہو فجر طلوع ہونے تک، اس کے فوراً بعد ہی یہ بھی بتایا کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم لوگ رات تک یعنی سورج ڈوبنے تک روزے کو مکمل کرو، روزے کو پورا کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں ہمیں سورج کے ڈوبنے تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے اور نہ ہی پینا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور پھر اسے قضا کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر میں جان بوجھ کر قے کر دینا، الٹی کر دینا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کر دیتا ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اگر خود بخود قے آ جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو، کسی روزے دار کو قے اپنے سے آ جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اسے قضا دینا نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اسے قضا کرنا پڑے گا۔ بخاری کی روایت ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2380۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ حیض یا نفاس کا خون آنا۔ اگر کسی عورت کو حیض کا خون آ جاتا ہے روزے کی حالت میں، یا تو پھر اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی روزہ باطل ہو جائے گا اور پھر قضا دینا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسی عورتیں جسے حیض آ جاتا ہے تو وہ نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1951۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں حیض آ جاتا ہے تو اس کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہاں ایک چیز اور میں شامل کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری عورتوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ روزہ افطار سے کچھ ہی دیر پہلے ہمیں خون نظر آتا ہے تو کیا ہمارا روزہ مکمل ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر 2 منٹ پہلے بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا، اس کو قضا دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر دن کے حصے میں روزے کی حالت میں وہ بچہ جنم دیتی ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا، اس کو بھی قضا دینا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے، چوتھے نمبر پہ ہے مشک زنی کرنا۔ یہ نوجوانوں میں ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے اور غلط لت لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے غلط طریقے سے وہ لذت کو پوری کرتا ہے، شہوت کو پوری کرتا ہے۔ مشک زنی کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنے کو۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے شہوت کو پوری کرتا ہے، منی خارج کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر صبح سے شام تک یعنی سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور شہوت سے دور رہتا ہے۔ تو یہاں شہوت کی بات آئی اور اپنے ہاتھ سے منی کو خارج کرنا یہ بھی ایک شہوت کا طریقہ ہے جو کہ غلط ہے۔ ایسی صورت میں بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی سے بھی ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کو قضا دینا پڑے گا۔
5वें नंबर पे है हम बिस्तरी करना, जमा करना। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में हम बिस्तरी कर लेता है, अपनी बीवी से मिल लेता है, जमा कर लेता है, तो उसको कज़ा और कफ़ारा दोनों देना पड़ेगा, रोजा बातिल हो जाता है। और सिर्फ रोजा को कज़ा नहीं करना बल्कि कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी देना पड़ेगा। इससे पहले हमने 4 पॉइंट को आपके सामने वाज़ह किया, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ कज़ा करना पड़ेगा, उसमें कफ़ारा नहीं है। लेकिन ये 5वीं किस्म हम बिस्तरी करना, इसमें कज़ा और कफ़ारा दोनों देना पड़ेगा। और इसकी दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बीवी पर वाक़िअ हो गया, यानी मैंने हम बिस्तरी कर ली, अब मुझे क्या करना होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम एक गुलाम आजाद कर सको? तो उस सहाबी ने जवाब दिया, जी नहीं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि 60 दिन पे दर पे लगातार रोजा रख सको? तो सहाबी का जवाब था, जी नहीं, मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता हूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि 60 मिस्किनों को खाना खिला सको? तो इसके जवाब में भी उन्होंने कहा, नहीं, मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता हूं, मैं बहुत गरीब हूं। रावी हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक थैला लाया गया जिसमें खजूरें थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस थैले को उस आदमी को, यानी उस सहाबी के हाथ में थमा दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारे इस एरिया में, इस मोहल्ले में जो मोहताज है, जो गरीब हैं, उनमें तकसीम कर दो। तो उस सहाबी ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, इस एरिया में, इस इलाके में मुझसे ज्यादा कमजोर और मुझसे ज्यादा मुफलिस मैं किसी को नहीं देख पाता हूं, बल्कि मैं ही सबसे ज्यादा मोहताज हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, तुम अपने अहल वयाल में, तुम अपने घर वालों में तकसीम कर दो, खिला दो। और ये हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 1936 में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता ये चला कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लेता है रोजे की हालत में, तो उस रोजा को बाद में पूरा भी करना है, यानी कज़ा भी देना है, और फिर उसका कफ़ारा भी अदा करना है। अब कफ़ारा का भी एक तरतीब बता दी गई है, कफ़ारा की एक तरतीब बता दी गई है, उसी तरतीब पर अमल करना है। ऐसा नहीं कि अगर कोई शख्स हट्टा कट्टा है, जवान है, और उनसे ऐसी गलती हो गई तो 60 मिस्किनों को बुला के खाना खिला दे, ये गलत तरीका है, इसमें काम नहीं चलेगा, बल्कि तरतीब देखनी होगी। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम एक गुलाम आजाद करने की ताकत रखते हो? तो इससे पता ये चला कि पहले गुलाम ही देखना है, आजाद कर पाएंगे या नहीं। लेकिन हमारे जमाने में गुलाम नहीं पाया जाता है, गुलाम को हटा के अब दूसरी चीज देखनी होगी कि दूसरी चीज क्या है। जब हम देखते हैं हदीस में, तो दूसरी चीज है रोजा। कितने? 60 रोजे, यानी 2 महीना, 2 महीना तक लगातार रोजा रखना है। अगर 2 महीना रोजा रखने की ताकत नहीं है, तब तीसरी चीज है 60 मिस्किनों को खाना खिलाना। तो ये पैदल पे 3 चीजें देखनी होगी, इसमें से जो जिसकी ताकत रखते हैं उसे हमें करना होगा, तब जाके आप अपनी बीवी से मिल सकते हैं। और ये काम रोजा रखना है 60 दिन, ये काम अपनी बीवी से अगली बार हमबिस्तरी करने से पहले करना है। ये थी 5 चीजें जिनसे रोजा टूट जाता है। अब आइए हम ये देखते हैं कि वो कौन से अमाल है, वो कौन से काम है जिनसे रोजा तो नहीं टूटता है, लेकिन नेकियां खत्म हो जाती है। रोजा रखने की जो नेकी होती है वो खत्म हो जाती है। 1 नंबर में है झूठ बोलना। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में झूठ बोलता है या दगाबाजी करता है, तो उसका भी रोजा तो हो जाता है, लेकिन उसको सवाब नहीं मिलता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में भी झूठ बोलना और दगाबाजी करना ना छोड़े, तो अल्लाह ताला को उसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो भूखे और प्यासे रहे। और ये हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 1903। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में भी झूठ बोलना ना छोड़े, दगाबाजी करना ना छोड़े, तो अल्लाह ताला को इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो भूखे प्यासे रहे। तो अगर हम झूठ बोलते हैं रोजे की हालत में भी, तो ऐसे ही हम भूखे प्यासे रहते हैं, हमें रोजा रखकर कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, नेकी मिलने वाली नहीं है।
अब दूसरी चीज है गाली गलौज करना, झगड़ा लड़ाई करना। अगर हम रोजे की हालत में झगड़ा लड़ाई करते हैं तब भी हमें रोजा का सवाब नहीं मिलेगा। रोजा तो हो जाएगा, हमसे फर्जियत साकित हो जाएगी, लेकिन हमें रोजा का सवाब नहीं मिलेगा। और इसकी दलील है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोजे से है तो उसे ना गाली गलौज करना चाहिए, ना फहश बोलना चाहिए और ना ही इधर उधर की हरकत करनी चाहिए। अगर कोई शख्स उस रोजेदार के साथ लड़ाई करना चाहे या उसे कोई गाली दे तो ऐसी सूरत में रोजेदार सिर्फ इतना जवाब दे दे कि मैं रोजे से हूं, इतना कह के वो चुप हो जाए। अगर वो खुद भी लड़ने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, तो उसको भी रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। ये थी दो चीजें। अब हमारे समाज में ये देखा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, और इन चीजों को जान लेने के बाद इन बुराइयों से, इन हरकत से, इन अफ़आल से मुकम्मल तौर पर परहेज करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा रोजा कामयाब हो, अगर हम ये चाहते हैं कि रोजे के जरिए से हम अल्लाह ताला को राजी करें और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाएं, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि इन चीजों को जानें और उस पर अमल करें। यहीं से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को रोजे के दौरान कोई ऐसा काम न करने दे जिससे हमारा रोजा बातिल हो जाए या नेकी खत्म हो जाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।